everyone, good evening. I'm Dr. Kiran Swami, and we are live again with another guest, Dr. Mini Mehta. And she's a faculty member at London College of Homeopathy, and she has been practicing for chronic diseases such as diabetes or other health conditions. And today's topic is also related to health only. So we all know heart health is has taken a huge dip recently. As per the studies, 2022 के बाद से हार्ट हेल्थ के डिटेरियोरेट होने के केसेस बहुत ज़्यादा हमें मिलते हैं. तो हमारे टॉपिक को और ज़्यादा क्लैरिफाई करने के लिए हम बुलाएंगे डॉक्टर मिनी मेहता को. शी इज़ अ सीनियर कंसल्टेंट ऑफ होम्योपैथी. So, hi ma'am, welcome. Hello, thank you for inviting me. So, how are you feeling to join us as a guest speaker? We are so thrilled. I'm very happy and I'm feeling very good that you have invited me to share my experience and my views. So, we would like to know why heart health is deteriorating recently. Yes, we all are hearing that heart health is deteriorating recently, but it has been this heart problem has been the greatest concern since ages only. You know, just before this cancer got popular, the heart disease was the disease which was responsible for large number of deaths all over the world. So nowadays, as we are seeing that people, Um, your voice is breaking, ma'am. So, there is some problem in network. So we have invited what her happened? again. Your voice broke. Okay, I guess okay. I there was some so problem in the so I network. was saying the heart disease was always a very notorious disease, and people all over the world were suffering from it, and it was the major cause of death among the people. And nowadays it is very popular because nowadays people from all ages are having lot of inflammation. They are carrying lot of inflammation in their body, and you need to understand what is inflammation. Inflammation means some disease which is not resolved, contained in the body, in any part of the body, be it the nervous system, be it the respiratory system, be it the liver. Like, you know, in small children, when they receive vaccination, post vaccination, they just, you know, stay in a state of hanging healing stage, carrying a Yeah, right. lot of inflammation which stops them from growing normally. Like a child of tall parents will look very thin, skinny, not growing, having a poor growth rate. Why? Because he must be carrying some inflammation in the lungs, which is stopping that child from growing because it's not receiving enough oxygen. His you know, his intestines, gut system is suffering because he received a lot of antibiotics and vaccine. He's lacking the gut bacteria, he's not growing, so he is also growing in a hanging healing phase. Similarly, the young population nowadays, you will see that people are having lot of, if you will check CRP, this is one marker, inflammatory marker. Lot of people are having it more than 6, 9, 14, 12, 13, and they're living there. They're going to office, they're able to do their work somehow with painkillers, but they must be suffering from migraines, some other disease, diabetes. So they are having inflammation, and this inflammation will definitely, you know, result into some heart attack, some angina pains, which they are unfortunately unable to identify. This is, So, you know, uh, in how does this
inflammation happens, you will say ki why it is happening. What is heart? Heart, what does it do? It's like a plumbing action, keeps on circulating oxygenated blood, deoxygenated blood, carrying nutrients and hormones to the different places in the body. If something wrong happens, this plumbing system gets affected. What happens? The pulse rate rises. Heart has to do more work. And then it recognizes, oh, there's some problem, some poison in this area. Then it will give signals to the hypothalamus. It will raise the heat. You will get fever. Fever will kill that bacteria, and through lymph it will drain it out, and through sweat it will come out, and you will get out of this disease. This is how it happens. It might take 2 hours, 3 hours, or discomfort, 1 day, 2 days, and this is how you get better. But as soon as you get into the stage of inflammation and your body starts giving you fever as a defense action, you stop it. You destroy the heat. So the matter of that inflammatory, that obnoxious matter, it's stuck there only. And whenever you will again get a good health, you will get that fever again till the body is not able to kick it out. So every time you will have fever, heart has to work. This is how it gets weaker and weaker. Like in COVID, lot of people who were suppressing fever with Dolo again and again, and it was 1 to 2 weeks of fever. Then, if they were checking their the CRP, it was raised. Anybody who has been suppressing the fever, if you will check the CRP after 2 3 weeks, it will be raised. And if they are taking lot of antibiotics and lot of other drugs, you will find their D dimer be raised. Why? Because now it has started affecting the liver, which is responsible for the clotting of the blood. तो So this is how we fall sick. इसमें जब जिस तरह से हार्ट हेल्थ सफर कर रही है तो इसमें होम्योपैथी किस तरह से हेल्प कर सकती है? होम्योपैथी तो इसमें बहुत हेल्प कर सकती है, क्योंकि होम्योपैथी का काम ही यही है कि वो it is based on the natural laws. Natural law is that there will be inflammation, there will be heat, and it will be resolved by discharge. So it is homeopathically selected remedy will help the body to work according to this natural wisdom in minimum possible time. Like if you'll get fever and you have a body immunity that you can naturally without any medicine, you will be able to kick out in 6 to 8 hours with pain. A right homeopathic medicine will help you to get out of it in 2 hours with very minimum disturbance. This is how homeopathy helps. You would have read in homeopathic philosophy, every acute disease comes, whether it will take your life, वो इतनी strong होगी कि it is going to kill you, or it will go on its own. But nowadays we don't provide any time to any disease to go on its own, because we want to control everything happening to us. And also one more thing is important. The people who are already having a very poor heart health or already staying in a poor hanging healing state will find every simple fever coming in a very complex way to them, because already they have accumulated lot of disease in the body. Similarly, people with poor liver health, poor liver function, when they will suffer with any fever, they will also have lot of complications than other people. This is how it is. होम्योपैथी काफी हेल्प कर सकती है और Homeopathy आई helps. गेस लोगों को ट्राई करना चाहिए. Now you see, if a girl she starts having menses, okay, and there's a lot of congestion in the uterus, and there are a lot of circumstances why she got this dysmenorrhea. ये hormonal ये stressful event की वजह से हो रहा है. अब dysmenorrhea है and she has started taking the painkillers. Now she has introduced a disease. She's complicating it. So when she will complicate it and she won't let that uterus squeeze out that blood from the body, and it will, the next periods will be much worse. This is how her body will start having a bad effect on the heart, because again heart has to regulate everything.
right? So later on, how a CPI is going to develop, how Lilium Teague is going to be there after 15 years, 20 years. Palpitations will occur. Then she'll have catamenial headaches before periods because now the heart, the plumbing system is also involved. So whenever somebody starts falling sick, he has to look into naturopathic methods of coming out of it. First, watch it, observe it. Don't jump into popping up pills, painkillers. Not a good thing. It will, throw you in another 5, 10 types of disease syndromes. So, ladies can be victim of heart disease if their menstruation is not good, if they're not taking care of themselves during menstruation, if they're eating, if they're obese, they're eating all the spicy foods. And people think that it's a taboo. Don't eat spicy food before, during. Array, these are stimulants. If you eat stimulants, then it can, promote the discharges. So they need to be careful what they eat. If they're eating coffee, if they're drinking coffee, lot of coffee, or spicy food before, during periods, then that definitely it is going to affect it. So intelligent people, they try to keep it easy by having a good lifestyle. And there are people who want to complicate it and they think that everything will get fine with a painkiller, but they have started ruining their body. Later on, they get hives, urticaria, and more complex things, around these periods. This is how it happens. तो इसमें कौन-कौन सी हमारे पास कॉमन डिजीजेस हैं हार्ट रिलेटेड जिसके लिए हम होम्योपैथी को चूज कर सकते हैं? देखो, हार्ट तो बड़े आराम से हर चीज में इन्वॉल्व हो जाता है। जिनको फीवर रहता है उनके लिए भी हार्ट इन्वॉल्व हो जाता है ना। डायबिटीज है, उनका भी हार्ट इन्वॉल्व है। अब हार्ट ने तो सब जगह से अब प्लम्बिंग करनी है। अब तुम्हें डायबिटीज है, वहां पे इंडाइजेशन हो रखी है, तुमने वो खाना खाया हुआ है जो अब्सॉर्ब भी नहीं हो रहा बॉडी में, कॉम्प्लेक्स। तो फिर वहां से कैसे निकालें अब? तो वहां पे हट गया, अटक गया, स्टक हो गया। तो क्या हुआ, शादी से खाना खा के आए, बीपी हाई हो गया, बीपी हाई हुआ तो हार्ट पे लोड पड़ा, शुगर हाई थी तो अटैक पड़ गया, है ना। तो फिर यहाँ पे कौन सी रेमेडी निकालेगी? आंटी जी पार्टी में गई, वहां हलवा खा लिया था, पहले ही 200 शुगर थी, 350 हो गई, पेट में दर्द, पल्सेटिला ने निकाला, पल्सेटिला के सिम्टम्स हुए। जिसको आर्सेनिक के सिम्टम्स हुए उसको आर्सेनिक ने निकाला उस टाइम। जिसको नक्सवामिका के सिम्टम्स हो, हाउ यू रिएक्ट। होम्योपैथी का काम क्या है, ये मैं सराउंडिंग समझा रही हूँ, वो तो एक डॉक्टर की इंटेलिजेंस के लिए है। लेकिन मेरा काम तब बनेगा कि कोई भी पेशेंट किसी भी वजह से बैठा है, तुम्हारे 8 सिम्टम मैंने अपनी रेमेडी के 8 सिम्टम से मिला लिए, तो तुम उस चीज से बाहर आ सकते हो, उस डिस ईज से बाहर आ सकते हो। ठीक है। अगर तुम्हारा ऑर्गन रीअरेंज नहीं है तो तुम उस डिस ईज से इस बार बाहर आ जाओगे, लेकिन दोबारा होगा कि नहीं होगा वो डिपेंड करता है कि हाउ यू विल मेंटेन योर ऑर्गन। मशीन में क्या डालोगे दोबारा तो वही रिएक्शन आएगा, दोबारा से वही सब चीजें खाओगे। तो यू हैव टू मेंटेन योर लाइफस्टाइल। आपका क्या कहते हैं, कंडीशंस क्या है, आप खाना क्या खा रहे हो, और आपकी मेंटेनिंग कॉज होगा तो आप कैसे इम्प्रूव करोगे, है ना। तो कई लोग तो बस ये होता है कि उस स्टेट से निकाल दो, अगेन दे आर द सेम, है ना। तो पल्सेटिला, तो ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए हम एसिड फॉस, पल्सेटिला, आर्सेनिक, नक्सवामिका, कैलमिया लेटिफोलिया, कि खाना खा के दर्द हो गई, काली कार्ब, खाना खाया जी दर्द होती है, ढकार मार रहे हैं दबा दबा के, मेरी पीठ मलो, मेरी पीठ मलो, मुझे सांस नहीं आ रही, है ना, बीपी हाई हुआ है। अब कुछ पेशेंट्स हैं उनको क्या हार्मोनल होता है, फियर इतना है, पेपर आ रहे हैं बच्चों के, मदर का बीपी हाई है, पढ़ ही नहीं रहे, बैठते ही नहीं है, जलसीमियम देनी पड़ती है, जलसीमियम से डाउन आता है। ये इसलिए नहीं कि उनको पेपर चाहिए, ये उस लेडी का नेचर है बचपन से, उसको फियर लेने की आदत है, दिस इज हर हैबिट। सो कई बार हम अपनी हैबिट से इवॉल्व ही नहीं हो पाते, क्योंकि हमने कुछ इतना कुछ देखा होता, हमारी हैबिट हो जाती है। तो उन लेडीज को हम जलसीमियम देते हैं, देन दे कम आउट ऑफ इट। चाहे उनके हार्ट में माइट्रल वॉल्व रिगर्जिटेशन है, वॉल्व खराब हो गए हैं, अगर वो जलसीमियम है तो लेटर ऑन भी जलसीमियम से हेल्प होगा। ऑपरेशन से पहले भी जलसीमियम के सिम्टम्स दिखाएगी कि ऑपरेट ही नहीं हो पाएगा। अब मैं डॉक्टर के
अग्रवाल के साथ थी वहाँ पे, ही वॉज अ कार्डियोलॉजिस्ट एज यू नो इन मूलचंद हॉस्पिटल। तो मैं मॉर्निंग राउंड्स में जाते थे, तो वो हमें एक पेशेंट के पास लेके गए थे कि इसका वॉल्व रिप्लेस करना है, लेकिन देख अब मैं जैसे ही जाऊंगा इसके कमरे में तो उसका बीपी देखियो कैसे शूट अप करेगा। और वो रेडी था मन से कराने के लिए, लेकिन डॉक्टर साहब को देखते ही उसका बीपी इतना हाई हो जाता था कि वो कुछ कर ही नहीं सकते थे। तो हमने उसको ये जेलसीमियम कॉन्स्टिट्यूशनल दी कि दैट नाउ ही वाज एबल टू ऑपरेट ऑन हिम, कि ये हार्मोनली उसको सही किया, थोड़ी काउंसलिंग करी उसका थोड़ा सा कि हैबिट चेंज करो, हमेशा ऐसे नहीं होता। लेकिन उसे लगता था कि बस पता नहीं क्या होने वाला है, कंट्रोल ही नहीं कर पाता था वो। और ऐसे ही कुछ पेशेंट्स होते हैं, एज सुन एज दे रीच द हॉस्पिटल और द डोर ऑफ द डॉक्टर देयर बीपी राइजेस, व्हाट मेडिसिन यू कैन गिव? आईएसएमएस। पता नहीं साला क्या कर देगा, आजकल डॉक्टर हुआ है आता कुछ नहीं है, नलायक होते हैं, प्रोटोकॉल से चलते हैं। उनका बीपी शूट अप कर जाए, अभी घर जाके देखेंगे नॉर्मल दिखाएंगे। आईएसएमएस विल हेल्प देम। सबसे पहले तो आप हार्ट डिजीज ठीक करोगे, ऐसे हाइपरटेंशन से ही ठीक करोगे ना। बिल्कुल। कार्डियोमिगैली हो, कृष्णा वर्मा, या मायोकार्डाइटिस हो, वट एवर मे बी द डिजीज, द स्ट्रॉन्ग peculiar symptoms will guide you to the right remedy. अब हार्ट डिजीज का सबसे इंपॉर्टेंट कारण बहुत लोगों में जो मिलता है वो क्या होता है? रूमेटिक फीवर। फीवर होता है बचपन में, बहुत स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हो गया, गला खराब हो गया, टॉन्सिल्स बहुत ज्यादा बढ़ गए, बच्चे को 104 बुखार है। अगर बहुत सीवियर कंडीशन है आज के टाइम पे, वो स्ट्रेप्टोकोकिन, वो हम लोग के पास है एकदम स्ट्रेप्टोकोकिन दे सकते हैं, लेकिन एलोपैथिक में वो एंटीबायोटिक देके वो बुखार डाउन कर देते हैं। लेकिन कई बार जॉइंट्स में स्वेलिंग आ जाती है बच्चों के, बार 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 बुखार डाउन करने से। फिर क्या होता है, वो इतना बुखार डाउन कर देते हैं तो उनके जॉइंट्स में स्वेलिंग में पानी भर जाता है। तो उसको, उस बर्साइटिस को कम करने के लिए वो स्टेरॉइड्स देते रहते हैं, 2-2 साल ये काम चलता है। बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती, वो सूख जाते हैं, ट्यूबरकुलर दिखते हैं। ऐसे बच्चों का होम्योपैथिक ट्रीटमेंट आप करोगे तो वो बेटर हो सकते हैं। लेकिन उसमें क्या होगा, व्हेन यू स्टार्ट ट्रीटिंग देम, नेक्स्ट टाइम उनके जो भी फीवर होंगे 100 या 101, यू शुड बी एबल टू हैंडल देम विद योर राइट रेमेडीज, whether streptococcus, arsenic or anything, or natrimure or their constitutional remedy. I have treated lot of children जिनके नी में पूरा बर्साइटिस, पतले पतली सी, वो एक लड़की थी, उसका आई ट्रीटेड फॉर 6-7 months एंड शी वॉज बेटर। नहीं तो उसका घुटना सूज जाता था, और वो उसी स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन की वजह से था। अब उसके हार्ट में कोई डिफेक्ट नहीं था, लेकिन शी कुड नॉट रन। जहां कोई ऐसे भागने दौड़ने की, खेलने की वो चीज होती थी, शी नेवर यूज टू लाइक इट। वो नहीं कर सकती, सीढ़ियां नहीं चढ़नी, उसको गोदी में ही सीढ़ियां चढ़ेगी वो। तो दिस इज हाउ इट कम्स। ऐसे ही बड़े लोगों में भी क्या होता है, हाई फीवर आया, हमने इतना इतना दबा दिया, उसके बाद से कहते जब से ये बुखार हुआ है मैं ये लात घसीटता हूँ, जब से ये बुखार हुआ है ये मेरी लातें चलती नहीं है, पैर महसूस नहीं होते, सुन्न है, थाईज इतनी चौड़ी चौड़ी हो गई हैं, हाथ ऐसे जोर से लगाओ तो उसमें लाइनें आती हैं। तो उसमें क्या है, आपका हार्ट का वो इको करेंगे कुछ नहीं आएगा, कभी कभी बीपी हाई आएगा। लेकिन वहां आप देखोगे स्ट्रोफेंथस, एडोनिस, ये सारी मेडिसिन डायूरेटिक की तरह भी काम करेगी, हार्ट को हेल्प करेगी, एक्सेसिव फ्लूइड को भी ड्रेन करेगी। ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट होम्योपैथी में कभी ऐसे होता है कि कार्डियोमेगैली की दवाई दे दो भाई, अरे भाई नहीं, किसको क्यों हो गया था, हिस्ट्री देखो। अब किसी की अगर कोई वो ले रहा है कि भाई हमारा ब्लड थिनर दिया हुआ है, तो ब्लड थिनर जिसको दिया हुआ है उसको, उसका ब्लड थिक है, क्यों थिक है, या कोलेस्ट्रॉल है, क्या है, क्या उसका लिवर खराब है, क्या उसके ब्लड में थिकनेस लिवर की वजह से, तो लैकेसिस देना पड़ेगा, क्रोटिलिस, नाजा, ये सारी मेडिसिन उसको हेल्प कर सकती हैं। अब मैं हर टाइप की केस टेकिंग नहीं कर सकती कि मैं कैसे निकालूंगी, ये तो मेरा काम है कि मैं पहले देखूंगी मिला क्या है मुझे, अब ये क्यों हुआ होगा। वही नॉलेज ऑफ द डिजीज चाहिए, है ना। पेशेंट के लिए नॉलेज ऑफ ऑल द सर्कमस्टांसेस, किस किस चीज से हो सकता है, क्या किया होगा इसने, आज के टाइम पे क्या क्या हो चुका होगा इसके साथ, ये क्या खा के आया होगा पेशेंट, इसकी मेंटेनिंग कॉज क्या हो सकती है, अगर साइकोलॉजिकल लेवल पे क्या होता होगा जो इसको ये हुआ है। एकदम एक डिटेक्टिव की तरह आपको बड़ा पैशनेट होके आप सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व करोगे। अब एक आदमी था, उसको एक्सीडेंट हुआ, घुटने में चोट लगी, तो बड़ा दर्द था, पेन किलर दे देते हैं ना इसमें भी लोग, तो उसमें भी हैंगिंग हीलिंग में फंस जाता है वो एरिया।
तब से उसका बीपी हाई रहने लगा। अदरवाइज उसका हार्ट हेल्थ भी अच्छा था, तो पूरी लेग उसकी वो वाली स्वेल थी और वो पैर भी सूज रहा हुआ था, इतना ऊंचा सूजा हुआ था कि उसमें खुजली होती थी, दाने होते थे, कि बॉडी इतना एक्सेसिव फ्लूइड वेन्स वहां से भी बाहर कर रही थी। तो वहां से ट्रीट करते करते, चोट की मेडिसिन देते देते, साथ में हेल्प करने के लिए कई बार ये जो मेडिसिन जैसे एडोनिस है, आपकी कॉन्वलेरिया है, ऑस्ट्रोफेंथस है, ये हेल्प करती हैं। बोएरविया डिफ्यूजा है, जो पैलिएटिव में कि पेशेंट को पता नहीं किस किस वजह से अब उसका हार्ट जो है धक्के खा रहा है, बहुत मुश्किल से काम कर रहा है, तो आपने बोरविया से हेल्प किया तो उसकी यूरिनेशन भी अच्छी हो गई। और क्योंकि एक होम्योपैथिक मेडिसिन पूरे बॉडी को ओवरऑल हेल्प करती है, तो बहुत 13 दवाइयां लोगों की चल रही होती हैं, वो बंद हो जाती हैं, तो दे आर कंफर्टेबल। ऐसा नहीं है कि वो अमर हो जाते हैं। ठीक है। और कुछ? ये डूबते के लिए तिनके का सहारा वाली बात हो अरे जाती है बहुत, उनके आप लिए। देखोगे बहुत आराम हो जाता है। अब मान लो किसी पेशेंट को बहुत टाइम से बीपी की प्रॉब्लम है, उसको थायराइड है, उसको अस्थमा है, चलते हुए सांस भी फूलती है, और मतलब पोस्ट सर्जरी उसकी इतनी सारी मेडिसिन चल रही हैं। एक लाइकोपस दे दोगे ना उसको, ये सारे सिम्टम्स और मिला के, मेन मेन तो ये पैथोलॉजिकल आ गए, और 3-4 और मिल जाएंगे उसके, तो देखोगे आप उसकी लाइफ, वो जो झुक के चल के आता था सीधा चल के, आप कहोगे वाह। कैक्टस है, वंडरफुल। कमाल है का, कैक्टस मेडिसिन ही कमाल है हमारी। कैक्टस 6 की एक डोज से तो मतलब कि क्या हो जाता है, बहुत बढ़िया एकदम बंदा, जो सॉर्बिट रेट से भी नहीं होता, जो डिस्प्रिन से भी नहीं होता, लगातार दवाइयां लेके भी नहीं कुछ होता, वो भी उससे सही हो जाता है। तो मैं इसका देखो, हमारे ना एलोपैथिक में आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आपके पास जो हार्ट का पेशेंट आ रहा है, जो डायग्नोज हार्ट पेशेंट्स है, वो क्या दवाई खा के आते हैं। उनको एक तो बीटा ब्लॉकर्स देते हैं, एस इनहिबिटर्स देते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देते हैं, ब्लड थिनर्स देते हैं। क्यों देते हैं, क्या काम करते हैं वो? किसका हाइपरटेंशन जो है वो किडनी की वजह से है, किसका हाइपरटेंशन पोर्टल स्टेसिस की वजह से, लिवर की वजह से है, किसका हाइपरटेंशन हार्ट की ही वजह से है। ये सब पता कर लोगे ना, तो ओहो, दवाइयां हमारी इतनी स्मूथ चलेंगी, मक्खन की तरह फेमस हो जाओगे एकदम। और पैशन आएगा कि यार और अच्छे से निकालूं, सिंपल सिंपल मेडिसिन से लोग ठीक हो जाएंगे। और उसमें अपने से बाइफर्केशन आ जाएगी, किसको हार्मोनल प्रॉब्लम से हो रहा है, किसको गुस्से से हो रहा है, किसको दुख से हो रहा है, किसको लॉस से हो रहा है, किसको शक पड़ रहा है, उससे हो रहा है। तो दे आर डिफरेंट रेमेडीज। तो हमारी होम्योपैथिक की भी एस इनहिबिटर्स हैं, होम्योपैथिक की भी बीटा ब्लॉकर्स हैं। ये सब चीजें हमने जो है ना डॉक्टर के अग्रवाल के साथ रह के वहां पे काम करी, तो हम लोग रिप्लेस कर लेते थे उनकी गाइडेंस में, कि अब मैं अपना बीटा ब्लॉकर बंद कर रहा हूँ, ऐसा कर कि तू चला अपना बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर्स कौन से होते हैं? एटेनोलॉल, मेटोप्रोलॉल, जिनके आगे ऑल लगा हुआ है, सारे बीटा ब्लॉकर्स होते हैं। इनका काम क्या होता है कि किसी का चेस्ट पेन में, जैसे एंजाइना होता है, चेस्ट पेन डिस्कम्फर्ट में हेल्प करते हैं, कि हार्ट अटैक नहीं पड़ जाए, इरेगुलर हार्ट बीट आ रही हो। तो आजकल के टाइम पे एलोपैथिक डॉक्टर्स इतना हेडेक नहीं लेते कि यार इसको सिर्फ बीटा ब्लॉकर दूं, वो एस इनहिबिटर भी लिख देंगे, बीटा ब्लॉकर भी लिख देंगे, कैल्शियम चैनल, अब जाओ भाई महीने बाद आना उनकी वजह से, ठीक है ना। अब आओ तो स्टंट डलवाने आना, उससे पहले कोई फायदा नहीं है। और देते हैं एस इनहिबिटर देते हैं, जिसका बीपी बहुत हाई होता है, कि भाई बीपी कम हो जाए, हार्ट पे स्ट्रेन कम हो जाए, चाहे दूसरी कोई और बीमारी पनपती चली जाए, हार्ट मसल पे लोड नहीं पड़ना चाहिए। ब्लड थिनर देते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर किसको देते हैं? कि बहुत ज्यादा हार्ट रेट जिसका बढ़ रहा हो, उसको कम करने के लिए। हार्ट रेट किसका बढ़ेगा? मान लो कि आपके लंग्स में आईएलडी है आपको, ठीक है, और आप सांस लेने की आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो उन लोगों की पल्स रेट बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है। अब आप इसको हार्ट हार्ट और लंग का एक साथ मिलने का डिस्कम्फर्ट देखोगे, या अलग से ट्रीट करोगे? बॉडी की फंक्शनिंग को ईज करने के लिए हार्ट रेट उसने स्लो किया होगा ना, आप उसको बढ़ा दो, या बढ़ा रखा है तो आप उसको कम कर दो। हार्ट रेट कब बढ़ता है? जब हार्ट एक वीक जगह पे तेजी से ब्लड सप्लाई करना चाहता है, तो उसको चाहिए होगा ना उतना, इसलिए हार्ट रेट बढ़ा रखा है, और आप बस कम कर ही जाओ, तो ये आपको किस तरफ लेके जाएगा? मृत्यु की तरफ। टेम्पररी ईजिंग ऑफ सिम्टम्स, लेकिन अल्टीमेटली रॉन्ग डायरेक्शन में। तो ये एलोपैथिक क्योर होता है। वहीं अगर हम अपने होम्योपैथिक पे देखें, तो हम सिम्टोमेटिक जब भी पेशेंट को मेडिसिन देते हैं, तो वो पेशेंट को रिलीव ही करता है, और वो भी राइट डायरेक्शन में। वाई? बिकॉज होम्योपैथी इज बेस्ड ऑन नेचुरल लॉज, और बॉडी की जो नेचुरल हीलिंग विजडम है वो उससे मैच करता है। वो कोई और एक्स्ट्रा डिजीज नहीं बनाता, कोई कॉम्प्लेक्स डिजीज नहीं बनाता साथ में।
जैसे अब हम तो सिम्टम्स पे काम करते हैं। मैंने कहा अगर हमें सिम्टम्स पता है उन पॉइजन्स के जो हार्ट पे अटैक करते हैं, तो जब भी हमारे पास वैसी पिक्चर होगी, हमारे माइंड में क्लैरिटी होगी, तो हम ट्रीट कर पाएंगे। जैसे अब आपके पास कोई पेशेंट है, डॉक्टर साहब मेरी तो पेन बहुत ज्यादा होती है, ऐसे बगल के अंदर चली जाती है, वो नहीं सोच पा रहा है कि उसे हार्ट की प्रॉब्लम है, फिर ये उंगलियां तक दर्द करती रहती है, थोड़ी देर में दबाता रहता हूँ, हिला नहीं सकती, फिर मैं ऐसे नहीं हिला सकती है, फिर थोड़ी देर बाद ठीक हो जाती है। अरे भाई, लेट्रोडेक्टिस मैक्टेंस के सिम्टम है ये। वो तो नहीं सोच सकते एंजाइना, पर हमें सोचना है कि कैसा है ये। अब कोई पेशेंट आएगा, वो कहेगा कि भाई मेरे ना दबाव बड़ा पड़ता है आजकल, सब्जी लेने जाती हूँ ना जब संडे बाजार से थैला उठा के लाती हूँ, दबाव बड़ा पड़ता है, बस सांस भी फूलने लगती है, मेरी उम्र हो गई है, ये लोग मेरी सुनते नहीं। वो तो अपनी घर की प्रॉब्लम्स बताएगा, आप उसमें घुस मत जाना। वो साइकोलॉजिकल नहीं आएगा, साइकोलॉजी तो सबकी चलती रहती है, उसमें देखो उसको इफेक्ट क्या आ रहा है उसका। अभी ये कुछ ज्यादा इफेक्ट तो नहीं आ रहा, बस दबा के रखो। आप क्या करते हो फिर आपको होता है? मैं बस दबा लेती हूँ जितनी देर, तो ठीक है चलती रहती हूँ, पर अभी ज्यादा हो रहा है, लॉरेसिरस दो ना उसको। आप की नोट हाइलाइटिंग सिम्टम से ही दवाई पकड़ के पूरी रीड करोगे तो पता चलेगा नहीं नहीं लॉरेसिरस इलेक्ट्रोइक्टस ही है, लेकिन उसके हाईलाइट सिम्टम आपको अगर दिमाग में रटे होंगे तो आप पकड़ोगे। अब कोई लेडी कहेगी जिसको बहुत सारे फाइब्रॉइड्स हैं, बहुत कुछ है, रो रही है, आपको आके, उसने तो हमेशा ही रोना है घर में आके आपके पास, आपको पता है उसको फाइब्रॉइड्स भी हैं, लेकिन वो आज बोलेगी आज तो इतनी लड़ाई हुई है, मेरा दिल ठंडा हो गया है, फिर छाती ठंडी फील हो रही है, पूरी मेरी सीधी हाथ तक दर्द जा रहा है, तो जान निकली जा रही है। और आपको पता है कि एक औरत जिसकी सीपिया वाली प्रोट्रूजन है, बियरिंग डाउन है और पल्सटिला वाला नेचर है, वो लिलियम टिग है। अगर उसकी राइट आर्म में दर्द हो रहा है चेस्ट से, आपने पेशेंट को देखना है, उसके एक्सप्रेशन से पता करना है कि कितनी प्रॉब्लम है उसको। तो ऐसे अगर आपके पास सिम्टम्स आपको पता होंगे तो ही आप निकाल पाओगे। अब जैसे लाइकोपोडियम का क्या होता है, उसके पेट में दर्द होता है यूरिन से पहले, और यूरिन करते ही बेटर हो जाता है ना ब्लैडर का पेन। ऐसे ही आपको कोई कहे कि मेरे सीने में बड़ा दबाव पड़ता रहता है, लेकिन जैसे मैं एक बार पेशाब होया हूं ना, तो थोड़ा बेटर हो जाता है। लिथियम कार्ब में होता है ऐसे, तो आपको हमको पता होगा तो हम करेंगे उसके अंदर। तो क्या है, हमें बड़ा रेडी रहना पड़ेगा। हमारे जो पुराने पेशेंट है ना, अक्सर आप उन्हीं को ही हार्ट डिजीज में हेल्प कर पाओगे, क्योंकि डायरेक्टली अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो एम्बुलेंस आपके क्लिनिक पे नहीं आने वाली, ठीक है ना। जिसको ऑन एंड ऑफ अगर अपने आपके साथ ट्रीटमेंट कराते कराते आपके पास लोग आ रहे हैं, तो आपको पता होगा भाई ये सिगरेट पी रहा है बहुत ज्यादा, इसको टाइटनेस फील हो रही है रोज, वैसे इसको स्मोकर्स कफ था, आज इसकी गर्दन के पीछे दर्द हो गया, इसको बोलो भैया, अगर मान लो आप किसी और वजह से भी आर्सेनिक देते हो तो जल्दी जल्दी ले लो अपनी आर्सेनिक, फोन आया तो जल्दी जल्दी ले लो इसको, 10-10 मिनट में ले लो, उसको आराम आ जाएगा। और बोलो अब जाओ डॉक्टर के दिखा के आओ कितना इको में, कितना तुमको क्या ब्लॉकेज है क्या नहीं है, देन उनकी मर्जी वो क्या करें, है ना। तो ऐसे ही एपिस है, ऐसे ही पल्सटिला है इंडाइजेशन के लिए हमारी मेडिसिन। मदर टिंचर पे तो जाने का मतलब ही नहीं, क्योंकि पेन तो डायनेमिक लेवल की बात है ना। जब फंक्शन स्टॉप हो जाएगा, पैथोलॉजी हो जाएगी, तो आप सोचोगे बाकी सारे मदर टिंचर्स की। अभी तो हमारे पास 30s में पोटेंसी में खेलने के लिए बड़ा कुछ है। स्पाइजीलिया अमृत है वो लेफ्ट साइडेड पेन्स के लिए। पेट में भी दर्द हो सकता है, बीपी के साथ पेट में दर्द है, लेफ्ट साइडेड पेन है, स्पाइजीलिया इज द बेस्ट मेडिसिन। हेडेक, लेफ्ट साइडेड हेडेक, चाहे उसको कोई भी बीमारी हो, बी इट एनी पैथोलॉजी, कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, अगर स्पाइजीलिया के सिम्टम है तो वो उसको ठीक कर देंगे। हार्ट अटैक है तो भी। ये होम्योपैथी की ब्यूटी है कि आपको उसकी सिम्टम टोटलिटी, पेशेंट क्या कह रहा है, मैं डॉक्टर साहब घर जाऊंगा, मुझे एक डोज दे दो, घर ही जाऊंगा, मैं जाऊंगा ही नहीं हॉस्पिटल, घर ही जाऊंगा, घर ही जाऊंगा, ले भाई बराइनिया ले, मदम खाता हुआ जाइयो, घर जाके चैन ले ले। ये, ये मत सोचो कि ऐसे तो सभी बोलते हैं बीमारी में, ऐसे नहीं होता, बीमारी में सब लोग सब कुछ नहीं बोलते हैं, हर कोई वो ही बोलता है जो बिल्कुल हिट करता है माइंड में। अब स्पॉन्जिया है, कॉन्स्ट्रिक्टिव पेन हो रही है, एंजाइटी हो रही है, लेटा नहीं जाता, लेटते ही पसीना आ जाता है, मिडनाइट में खड़ा हो जाता, बैठ जाता बंदा, उसको पहले वो थायराइड पेशेंट है, एक ऑपरेशन हो चुका है उसका, सांस लेने में उसको दिक्कत है, लेटने में बहुत दिक्कत है। तो आप अगर लेकेसिस काम नहीं कर रही तो स्पॉन्जिया काम करेगी, अगर दैट पेशेंट इज अ माइल्ड थायराइड वाला पेशेंट। तो आपको पता होना चाहिए कि हार्ट किसका कब क्यों रुकेगा, जब भी सर्कुलेशन नहीं होगी। किसका वीक है हार्ट, जिसकी कीमोथेरेपी हो गई, जिसकी रेडियोथेरेपी हो गई, उसका हार्ट वीक हो चुका है, हार्ट मसल वीक हो चुका है। तो अब इस तरीके से हम अपनी अप्रोच रखते हैं। ऐसे लेकेसिस हो गए, लेकेसिस तो भैया
60% लोगों को हेल्प करेगा ही करेगा, 60 से भी ज्यादा, क्योंकि वो टिपिकल उसके उसके हार्ट के सिम्टम्स है, क्रैम्प लाइक पेन, और एज इफ समबडी हैज क्रश्ड, क्रैम्प्ड, वर्स आफ्टर स्लीप, इनटॉलरेंस टू प्रेशर, ओपन में जाके झुक के यूं खड़े होकर सांस लेना, तो लैकेसिस तो हेल्प करता ही है। फॉस्फोरस है, कोई इमोशनल कोई प्रॉब्लम हो तो फॉस्फोरस मदद करता है। लैकेसिस तो मान लो किसी का ब्रेकअप हो जाए और हार्ट की में दबाव पड़ जाए तो लैकेसिस इज द बेस्ट मेडिसिन। और ब्रेकअप हुआ है और अभी तक याद आ रही है, एसिड फॉस, बहुत दिल टूट गया था, बड़ी बड़ी उम्मीदें थी, अब ऐसे लगता है कि हार्ट अटैक हो जाए, गिल्ट है बहुत ज्यादा, उसको नहीं बचा पाया, इसको नहीं बचा पाया, ऑरम मेटालिकम कैन हेल्प, 1 डोज। वो पेशेंट कहेगा पता नहीं, ये फेमस डॉक्टर चांदना को दिखाता रहा, 3 साल से कह रहे थे भाई साहब आपको कुछ नहीं है, मैं कह रहा था है। आपको ही समझ में आई है, आपने जी दवाई दी तब से है ही नहीं ये चीज मेरे को, तो वो ऑरम मेट है। तो इतनी ब्यूटी है होम्योपैथी में। हार्ट मेन मेन चीज है, हार्ट हार्ट के लिए सिंपल कोई मेडिसिन नहीं, वो अगर आपका हार्ट इफेक्ट हो चुका है तो ऑब्वियसली अगर उसमें स्ट्रक्चरल चेंज है तो ये एक पैलिएटिव केयर ही है। लेकिन अगर आप हाइपरटेंशन से जा रहे हो और एंजाइना आप समझ पा रहे हो किसी का, आप इन्फ्लेमेशन समझ पा रहे हो किसी बॉडी में कि पानी भर गया, थाइज मोटी हो गई, टांगे बड़ी हो गई हैं, पीरियड से पहले हो जाती हैं, बाद में हो जाती हैं, तो वहां से आप काफी कुछ उस पेशेंट को वापस खींच सकते हो। और तो कुछ अब ये तो हमने मेडिसिन की बात करी, अगर हम्म पेशेंट को हम पहले से प्रिवेंटिव केयर की तरह अगर हम समझाना चाहें कि क्या क्या वो टिप्स लें उसको पहले से प्रिवेंट करने के लिए हार्ट डिजीजेस को। देखो, बात यह है कि अगर तुम होम्योपैथी की बात करोगे, होम्योपैथिक मेडिसिन इसका काम शुरू होता है आफ्टर यू फॉल सिक। प्रिवेंशन की बात कभी नहीं करी है मैंने, उसने कहा ये पब्लिक हेल्थ जो है ना, आप रॉबर्ट्स पढ़ो कभी, उसने बोला है कि पब्लिक हेल्थ और ये हाइजीन सैनिटेशन ये दूसरे डॉक्टर्स को काम दे दो, होम्योपैथ का काम ये है आफ्टर यू फॉल सिक। और लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक हर डॉक्टर की नॉलेज में होना चाहिए। बिल्कुल। हार्ट कब ठीक रहेगा, अपने स्मॉल इन्फेक्शंस को राइटली ट्रीट करो, अपनी लाइफ को फ्रिवलसली मत लो, खा लिया कहीं से भी, अरे कुछ नहीं होता, इतनी एक्सरसाइज कर ली ट्रेडमिल पे, आप सोरा सिफिलिस और साइकोसिस अगर आपकी बॉडी का जो भी ट्रेडमाइजम है उसमें भी आपकी एक्सर्शन लेवल अलग है, आप 7 पे भाग सकते हो, आपकी मैक्सिमम लिमिट है, तो उसको क्रॉस मत करो। मैंने इतना देखा है जिम ट्रेनर इतने बेवकूफ बेवकूफ होते हैं, अनपढ़ एकदम, और वो लेडीज को क्या करते हैं, उनको पता ही नहीं है इसकी डिलीवरी हुई कितना टाइम हुआ है, किसको फाइब्रॉइड्स है, उनको रन कराते रहते हैं, कोई नहीं मैडम चलिए चलिए चलिए, उससे भी हार्ट में धीरे धीरे मसल स्ट्रेन आ जाता है। उतनी एक्सरसाइज करो, उतनी ही तेज वॉक करो जितनी बर्दाश्त हो जाए, धीरे धीरे ही वेट कम होता है। सीधा एक दिन कभी हिल स्टेशन पे गए, ओवर एक्सर्ट कर लिया, पहले कोई एक्सरसाइज नहीं करी, गए स्विमिंग पूल में, पिकनिक पे, फैमिली पिकनिक पे गए, ओवर एक्सर्ट कर लिया, ऑब्वियसली आपको अगर ये डायबिटीज है तो आपको हार्ट प्रॉब्लम जरूर आ सकती है। अपने आप को फिट रखो, बॉडी को लीन रखो, ऐसा खाना खाओ जो इन्फ्लेमेशन नहीं करे, ज्यादा खाना मत ठूसो, दिन में 2 बार खाना खाओ अगर आप फुली ग्रोन इंडिविजुअल हो, और वो न्यूट्रिशियस खाना खाओ। बेफालतू थोड़ी थोड़ी देर में गंद मंद अगर ठूसते रहोगे तो एक एज होती है कि मेटाबॉलिज्म हाई होता है, उसके बाद सब बेकार होने लगता है। सारी चीजों को मानो, अगर प्रिवेंटिव मेडिसिन करना है तो जिन जिन लड़कियों के बच्चा होता है वो अपना सिर नहीं ढकती हैं, आपने एक बॉडी में से एक बॉडी निकल गई है, वो ट्रॉमेटाइज आर्निका देते हैं ना, सिर भी कच्चा होता है, दांत भी कच्चे हैं, ये पुराने लोग बोलते हैं, वो टैबू बना दिया इन्होंने, क्योंकि हर एक को तो लॉजिक समझा नहीं सकते। देन एट दैट 40 days दे डोंट टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, उनके हार्ट में भी प्रॉब्लम आती है लेटर ऑन, पूरी बॉडी में प्रॉब्लम होती है, दे हैव टू हील। उस टाइम पे जो मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज है, जो ब्रेस्ट में से डिस्चार्ज है, कोई भी ऑब्स्ट्रक्ट होगा तो लेटर ऑन उनकी हेल्थ डिस्टर्ब होगी। जिस भी कल्चर में लेडीज का 40 days में बहुत ध्यान रखा जाता है पोस्ट डिलीवरी, दीज लेडीज आर दी मोस्ट हेल्दी लेडीज लेटर ऑन। लेकिन अब क्या है, सब सिर धो लेते हैं, अब आप सिर धो लोगे सारी वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, ब्लीडिंग रुक जाएगी। तो जब आपकी हैवी ब्लीडिंग के दिन होते हैं, यू आर टोल्ड नॉट टू वॉश योर हेड एंड टू कंट्रोल एक्सेसिव ब्लीडिंग। वो बोलते हैं पीरियड्स के चौथे दिन पे उसने सर धो लिया कि एक्सेसिव नहीं हो। सो दीज आर
आर द थिंग्स, अगर प्रिवेंटिव में मैं जाऊं, ये होम्योपैथी का पार्ट नहीं है, लेकिन ये लॉजिकल चीजें जो कहते हैं हम तो नहीं मानते, हमें तो कुछ नहीं हुआ। बेटा आज नहीं होगा कुछ, ये बाद में ही होगा कुछ, एकदम से नहीं होता। जो जो भी पैथोलॉजिकल चीजें धीरे धीरे सेट होती हैं, लेकिन कोई मानता नहीं है उसको। तो प्रिवेंशन करना है तो जो थोड़ी हमारी पुरानी नॉलेज है कि कब क्या खाना है क्या नहीं खाना। बारिशों में कहते हैं ना साग नहीं खाना, क्यों नहीं खाना, कीड़े लग जाते हैं। अब जिसने नहीं मानना ना माने। तो ऐसे अपना हेल्थ का ये ध्यान रखना है, हार्ट डिजीज कभी भी नहीं होगी जब आप छोटी छोटी डिजीज को सप्रेस नहीं करेंगे बॉडी में। अपनी बॉडी आपकी एक्टिव रहेगी। कहीं पे भी बंधन हो रहा है, बंधन मतलब कि आज मेरी कोनी नहीं खुल रही तो ये कंस्ट्रिक्शन हो रहा है, तो दिस इज अ प्रॉब्लम, वर्क फॉर इट। हो सकता है आपने कुछ खाया था वो आपको सूट नहीं किया, तो इस एरिया में जो है सही ब्लड सर्कुलेशन नहीं हुई, या कोई पॉइजन पहुंच गया। क्या खा रहे हो, फटाफट इसको माइंडफुल रहो, अलर्ट रहो। कहीं आप कोई किसी इमोशन में एक्सट्रीम तो नहीं जा रहे कि वो इमोशन ऐसा हार्मोनल इम्बैलेंस कर रहा है आपकी बॉडी के अंदर, ऐसी फीलिंग कर रहा है, एड्रीनल रश कर रहा है कि आप सिक हो रहे हो। तो आपको चाहे आपकी लाइफ में बहुत अमीरी रहे, बहुत गरीबी रहे, 4 लोग रहे, 2 लोग रहे, आप अपने लिए काम करो, एक्सरसाइज करो। क्योंकि हर स्थिति में बहुत मजे में डांस करने के लिए और बहुत बीमारी में रिकवर करने के लिए आपको आपकी बॉडी हेल्प करेगी। तो इसमें वही डालो जो उसके लिए फायदेमंद है, इस दिमाग में वही डालो जो उसके लिए फायदेमंद है। लापरवाही से मत जियो, यही एक चीज है। हार्ट को क्या, सारी बॉडी को बचा लेगी वो चीज। और हार्ट को तो सारे पॉइजन जाते ही हैं। स्मोकिंग करोगे आप, मस्त जो भी स्टिमुलेंट लोगे वो हार्ट को इफेक्ट करेगा, क्योंकि वो ब्लड सर्कुलेशन को इफेक्ट करेगा, तेजी बढ़ाएगा, वैसो कंस्ट्रिक्शन करेगा। कोई भी चीज ऐसे स्टिमुलेंट्स होंगे वो हार्ट को टच करते ही करते हैं, चाहे वो अल्कोहल है चाहे वो स्मोकिंग है। अगर आप कोई भी चीज लिमिट से बाहर होगी या आपकी टॉलरेंस से बाहर होगी, हर एक का थ्रेश होल्ड अलग होता है। सो एक आदमी का थ्रेश होल्ड अलग है किसी भी स्टिमुलेंट लेने को, सिफिलिटिक का अलग है, साइकोटिक का अलग है। अगर आप अपना थ्रेश होल्ड राइटली अंडरस्टैंड करके अपनी लाइफ को नहीं जियोगे तो डेफिनेटली यू स्टार्ट सफरिंग। और इफ एट ऑल ऐसा कुछ हो जाता है कि आपको लगता है यू हैव स्टार्ट सफरिंग, गो एंड कंसल्ट अ डॉक्टर, विल बी फाइन। ऐसा नहीं है कुछ भी इनक्योरेबल है या अनमैनेजेबल है। अब लास्टली मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है कि इसमें कौन कौन से इस तरह के साइंस हैं जो एक लॉन्ग रन में बताते हैं कि आपकी हार्ट हेल्थ खराब हो रही है इन अ प्रीवियसली हेल्दी पर्सन। स्टेमिना कम होना आपका, कि अब आपका दिल नहीं करता, सब बोलते हैं चलो यार पिकनिक पे खेलें, यार मैं नहीं खेल रहा, मुझे नहीं खेलना। पहले आप डांस करते रहे, अब जरा से डांस करके आप बैठ जाते हो, इतनी सांस फूलती है कि आपको लगता है कि मैं तो नहीं कर सकता। बैठ के उठो तो सिर घूम जाए, है ना, प्रेशर चेंज होता है। तो इससे समझ लो जब आपका स्टेमिना कम होने लग रहा है सीढ़ियां चढ़ने का, तेज चलने का, तो आपकी हार्ट हेल्थ खराब हो रही है, डाइजेशन खराब हो रही है आपकी। जब कोलेस्ट्रॉल कब बढ़ता है, जब हमारी आर्टरीज में ना एक हीट होती है, तो कोलेस्ट्रॉल कीप्स फ्लोइंग। वी ऑलवेज नीड अ गुड कोलेस्ट्रॉल विच कीप्स फ्लोइंग इन लिक्विड फॉर्म। लेकिन क्या होता है जब हमारी स्प्लीन की हेल्थ खराब होती है, तो उसी से रिलेटिवली हमारी आर्टरीज की हेल्थ खराब होती है, तो इट स्टार्ट्स गेटिंग स्टक एट वन प्लेस और उसके ऊपर एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो डाइजेशन पुअर हो जाती है। आप वही वैसे ही डाइजेस्ट नहीं कर सकते, आपको ज्यादा खुली हवा में चैन आता है, थोड़ा सा भी बंद हो जाता है तो यू डोंट लाइक इट। कभी भी हीट हो रहे हो, पसीना आ रहा है अननेचुरली, बिना एक्सर्शन के, है ना, पेन ज्यादा, हेडेक वगैरह होने लग गई हैं, पीरियड से पहले ज्यादा हेडेक हो रहा है, क्योंकि क्या है ना, कंजेशन हो रहा है। कंजेशन हो रहा है आपको, माइल्ड कंजेशन भी आपको बहुत पेन दे रहा है कि आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो ये सब चीजें हैं कि भाई यू आर गोइंग टूवर्ड्स इट। स्टेमिना कम होना सबसे बड़ी बात। दर्द हो जाना, बाजू, आज मेरी बाजू में दर्द है, एक दिन पड़ी रहूंगी तो ठीक होगा, यार खाना नहीं खाऊंगी बाजू में दर्द हो जाता है, ये नहीं खाना, पीठ में दर्द हो जाता है, आज पैर दर्द है, पूरा ही पैर दर्द है, जॉइंट नहीं दर्द, पूरे पूरा एरिया दर्द है। तो क्या है, सर्कुलेशन नहीं चल रही, तो कोई पीठ दबा देता है, प्रेशर पॉइंट दबाता है, तो क्या करता है, चला देता है वहां के एरिया, चैनलाइज कर देता है। दैट इज अ टेम्पररी थिंग। फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स यू कैन रिकॉग्नाइज दैट योर हार्ट हेल्थ इज रिड्यूसिंग। मोटे हो रहे हो तो हार्ट हेल्थ रिड्यूस करेगी, बीएमआई से बाहर जाओगे तो। दिस इज हाउ यू कैन रिकॉग्नाइज। इतने सारे अच्छे हमने टिप्स सुने जिसके आप
रिकॉग्नाइज एटलीस्ट कर सकते हो कि आपकी हार्ट हेल्थ थोड़ी सी डैमेज हो रही है, एंड देन यू कैन गो टू अ होम्योपैथिक डॉक्टर फॉर दैट, and then they can help you boost that. Right. So it was very nice of you to accepting our offer to be our guest speaker, and we loved having you. It was a wonderful session. I hope everyone learned something today. At least few things you must learn today, क्योंकि इतना अच्छा सेशन था, इतनी सारी चीजें हमने नई नई सुनी है आज। कुछ बहुत सारी चीजें मैंने भी सीखी हैं, कुछ मेडिसिन के बारे में नया सीखा। तो ये हम कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट वीक के लिए भी। नेक्स्ट वीक हम एक और सेशन कर रहे हैं, तो डू फॉलो अस फॉर दैट। एंड थैंक यू सो मच मैम फॉर जॉइनिंग Thank अस। you. Thank you. हैव अ नाइस डे एवरीवन। Yeah. You too, ma'am. Okay.